Hi guys, welcome to eLearno. In this video, we're going to learn about shortest remaining time first algorithm, that is SJF with preemptive mode. In the previous video, I have covered SJF with non-preemptive mode. Okay, so shortest remaining time first algorithm is basically the shortest job first algorithm working in preemptive mode. Preemptive mode means if any process have the higher priority than the currently running process, then CPU will assign to the new process. Okay, अब ये होता क्या है इसको thoroughly समझते हैं. See, if CPU is basically perform the execution of a particular process and having some burst time. Okay, burst time is basically the time amount of time for which a process wants CPU. Okay. So if a CPU is performing the execution of a particular process, suddenly a new process arrives that having a burst time less than the currently executing process. Okay, तो CPU currently executing process से छीन के उस new process को assign कर दिया जाएगा. क्यों? Because उस नई process का burst time currently running process से कम है. Okay, और SGF का main principle क्या होता है? Burst time कम होना चाहिए. तो इसलिए नई प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रीएम्प्शन, कि किसी प्रोसेस से सीपीयू छीन के प्रीएम्प्ट करके नई प्रोसेस को असाइन कर रहे हो आप. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रीएम्प्शन, और इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं. So this is basically the principle behind shortest remaining time first algorithm. Okay. Now let's understand the working of SRTF scheduling algorithm, that is SJF with preemptive mode scheduling algorithm. Okay, so in SRTF, basic principle is the principle of preemption. That is, if CPU is basically assigned to a process, okay, and it perform the execution of currently running process. Okay, and suddenly there is another process, a new process arrived in the ready queue. Okay, which have the highest priority, more than the currently running process. तो सीपीयू करंटली रनिंग प्रोसेस से छीन के या फिर आप कहो प्रीएम्प्ट करके नई प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा. ओके, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ SJF with preemptive mode. Now you can ask a question that how can we know which process have the higher priority and which have the lower? So in SJF the priority is determined by the burst time. As you know that SJF का principle होता है, we can assign CPU to the process that have the least burst time. Okay, so SJF में priority भी burst time से ही देखी जाती है. It means that the process that having the least burst time उसे CPU assign करना पड़ेगा. ओके, यानी कि अगर आपका CPU किसी प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा था, सडनली रेडी क्यू में एक नई प्रोसेस P2 आई that having the burst time less than P1, तो CPU P1 से छीन के P1 से preempt करके P2 को असाइन कर दिया जाएगा. This is what we call preemption, or you can say that this is what we call context switching. Now let's understand the working of SRTF with the help of a Gantt chart. So you have to draw the Gantt chart. In the previous video, I also tell you that to understand the working of any scheduling algorithm, you must have to draw the Gantt chart. Okay. So at time 0, is there any process in the ready queue? Check the arrival time of the processes. At 0, is there any process in the ready queue? Yes. P4 is there in the ready queue at time 0. So I have assigned CPU to P4. तो मैं P4 को यहाँ पे CPU assign कर दूंगी. Okay. See, in the previous video when we covered the non-preemptive mode, I have assigned CPU to the P4 till its termination. उसके termination तक यानी 6 तक मैंने उसे CPU allocate किया, because उसका burst time 6 है, तो 6 तक मैंने उसे CPU allocate करके रखा था in the non-preemptive mode. But here in the preemptive mode, at each and every unit of time I have to check in the ready queue कि क्या कोई नई प्रोसेस आई है ऐसी जिसका burst time P4 से कम है. ठीक है,
अगर कोई आई होगी तो मैं CPU P4 से छीन के उस नई प्रोसेस को दे दूंगी। सो आई हैव टू चेक एट ईच एंड एवरी इंटरवल। ओके, तो मैं P4 को CPU 0 से 6 तक नहीं दूंगी, मैं P4 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही चलाऊंगी। ओके, मैं P4 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाऊंगी। ओके, मैंने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P4 को चलाया, यानी कि P4 का बर्स्ट टाइम 6 से अब कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। ओके, नाउ एट 1 मैं दोबारा चेक करूंगी कि क्या मेरी कोई नई प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई है एट टाइम 1। सो यस, P2 is arrive in the ready queue at time 1 because P2 का अराइवल टाइम 1 है, P2 आ गई रेडी क्यू में। नाउ चेक, क्या P2 का बर्स्ट टाइम मेरी करंटली रनिंग प्रोसेस P4 से कम है? तो P2 का बर्स्ट टाइम है 5, मेरी करंटली रनिंग प्रोसेस जो P4 थी उसका भी 5 है, 5 ही तो रह गया अब। तो इन दोनों का बर्स्ट टाइम तो सेम है। और SRTF क्या कहता है, that have the less burst time, तो उसको CPU दे दो, लेकिन इन दोनों का burst time सेम है। So in this situation when two processes have the same burst time, we can assign CPU on the basis of FCFS। कौन पहले आया था उसके बेसिस पे CPU दे दो। चलो देखो कौन पहले आया था, P2 1 पे आई है और P4 किस टाइम पे आई है, 0 पे आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू असाइन CPU टू P4, मतलब P4 को ही दोगे, स्विचिंग नहीं हुई, P4 के पास ही CPU रहा। नाउ अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P4 के पास CPU रहेगा। अगेन एट 2 check in the ready queue, is there any process in the ready queue? Arrival time देखो at 2, is there any process? Yes, P1 is arriving at time 2, P5 is also arrive at time 2. Okay, so P1 is also arrive and P5 is also arrive in the ready queue. So let's see कि among ये जितनी भी प्रोसेस अब रेडी क्यू में आ चुकी है, इनमें से लीस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? ओके, सो P1 रेडी क्यू में आ चुकी है, P1 हैविंग द बर्स्ट टाइम 1 एंड P5 रेडी क्यू में आ चुकी है हैविंग द बर्स्ट टाइम 3 एंड P4 तो रेडी क्यू में थी ही। ओके, नाउ इन सब में से, इन तीनों में से व्हिच वन हैव द लीस्ट बर्स्ट टाइम? ऑब्वियसली P1 का क्या बर्स्ट टाइम करंटली रनिंग प्रोसेस P4 से कम है? यस, P4 having burst time 5 and P1 having burst time 1, तो CPU P4 से छीन के हम किसको दे देंगे? P1 को दे देंगे। ओके, तो हमने अब यहाँ पे CPU किसे असाइन कर दिया? P1 को असाइन कर दिया। कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? 1 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज अब टाइम कितना हो गया? 3। ओके, तो P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है बिकॉज P1 वांट CPU ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम, उसका बर्स्ट टाइम बनता है इसलिए। ठीक है, नाउ एट टाइम 3 चेक इज एनी प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू? क्या 3 पे कोई प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुई है? सी द अराइवल टाइम, नो, देयर इज नो प्रोसेस अराइव एट टाइम 3 इन द रेडी क्यू। यानी अभी हमारे पास प्रोसेस कौन कौन सी है रेडी क्यू में? P4 है, P5 है, ओके, एंड कौन सी प्रोसेस है? P2 भी है। ओके, नाउ चेक अमंग देम कि कौन सी प्रोसेस ऐसी है दैट हैविंग द लेस बर्स्ट टाइम। नाउ सी व्हाट, हमने P4 को दोबारा यहाँ पे CPU दिया था, तो इसका यहाँ पे 4 आ जाएगा बिकॉज सबसे पहले P4 को CPU हमने 0 से 1 के बीच में अलॉट किया था, उसके बाद 1 से 2 के बीच में भी अलॉट किया था, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी फॉर दैट। सो at 3 there is no process arrive in the ready queue, there is only 3 process in the ready queue, P2, P4 and P5. Okay, among them which one have the least burst time? P5 have the least burst time, so I have assigned CPU to what? P5 को मैं CPU assign करूंगी for how many amount of time? 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए उसको असाइन कर दूंगे। नाउ टाइम इज 4, P5 को तुमने CPU असाइन कर दिया था, सो P5 का बर्स्ट टाइम 3 से कितना हो चुका है? 3 से इसका बर्स्ट टाइम 2 हो चुका है। नाउ सी at 4 is there any process arrive in the ready queue? Yes, at 4 P3 is arrive in the ready queue with its burst time 1। क्या P3 का burst time that is 1 जो है वो currently running process P5 से कम है? यस, कम है, तो अब CPU किसे असाइन कर देंगे? P3 को असाइन कर दिया जाएगा। कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? 1 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 5। ओके, एंड P3 का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि P3 को भी CPU सिर्फ 1 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चाहिए था। नाउ सी, क्या आपकी सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी हैं?
यस, सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। नाउ नोट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि जब आपकी सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाए तो SRTF उसके बाद SJF की तरह काम करने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि SRTF का मेन क्या प्रिंसिपल था कि कोई भी CPU किसी प्रोसेस को मिला हुआ है, उसके बाद अगर कोई नई प्रोसेस आती है तो चेक किया जाएगा कि क्या वो नई प्रोसेस का बर्स्ट टाइम करेंटली रनिंग प्रोसेस से कम है तो CPU नई वाली प्रोसेस को दे देंगे। लेकिन जब सारी ही प्रोसेस आ चुकी हैं तो कोई नई प्रोसेस तो आएगी नहीं। तो अब ये जो प्रोसेसेस हैं इनको SJF के अकॉर्डिंग CPU एलोकेट किया जाएगा, यानी जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसे CPU एलोकेट कर दिया जाएगा। नाउ सी कि आपकी प्रोसेस कौन कौन सी आपकी रेडी क्यू में अब बच गई है। P2 आपकी रिमेनिंग इन द रेडी क्यू, P2 है आपकी, ओके। P4 इज देयर इन द रेडी क्यू एंड P5 is there in the ready queue. तो इन तीन प्रोसेस को CPU SJF के अकॉर्डिंग एलोकेट हो जाएगा, okay. Which one have the less burst time among these three? You can clearly see P5 have the less burst time, तो P5 को हम CPU एलोकेट कर देंगे for 2 unit of time के लिए P5 को हम यहाँ पे CPU एलोकेट कर देंगे। Now time is what? Time is 7, okay. Now P5 एग्जीक्यूट हो चुकी है। Now among P2 and P4 आप किसको CPU एलोकेट करोगे having the less burst time? So P2 और P4 में से P4 have the less burst time, that is 4. तो अब P4 को आप CPU एलोकेट कर दो कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 4 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। नाउ टाइम इज व्हाट? 7 + 4 11, ओके। नाउ P4 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ सिर्फ P2 एग्जीक्यूशन के लिए बची है। नाउ P2 को आप एग्जीक्यूट CPU असाइन कर दोगे कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, टिल इट्स टर्मिनेशन, यानी 5 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। दैट इज अब टाइम कितना हो चुका है, 16। सी in this scheduling, the total sum of total burst time, okay, is also 16, ठीक है, and the time for completion time of last process is 16. it show what? It show that कि CPU process execution के बीच में कभी भी खाली नहीं बैठा था। It will continue its execution, constantly continuous execution. CPU will not idle, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। Now let's understand how we can calculate the completion time, turnaround time and waiting time of each and every process, and also how we can calculate the average turnaround time, average waiting time, okay. So completion time is basically the time when a process get completed, or we can say a process get terminated. So let's see when the P1 is completed, ओके। सो P1 गैंट चार्ट में देखो कि P1 कब कंप्लीट हुई है। P1 का कंप्लीशन टाइम है बेटा 3, ठीक है। सो P1 इज कंप्लीटेड एट 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। नाउ सी कंप्लीशन टाइम ऑफ P2, गैंट चार्ट में आप देखिए P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है। P2 का कंप्लीशन टाइम बेटा क्या है, 16। इट मींस P2 is completed at 16, okay. Now see the completion time of P3. Completion time of P3 is what? Completion time of P3 is what? 5. So you can see here 5. Now see the completion time of P4. Completion time of P4 is what? Completion time of P4 is what? 11. P4 यहाँ पे complete हुई है। See a lot of students do mistake in that. They write completion time of P4 is 2. और दे some write P4 का completion time है 1 because they see only that part कि completion time of P4 2 है। No, completion time of P4 is not 2, completion time of P4 is 11 क्योंकि P4 11 पे complete हुई थी, okay. So completion time of P4 is 11, okay. Now completion time of P5, P5 का completion time कितना है, 7, okay. Completion time of P5 is 7, okay. Now let's understand how we calculate the turnaround time. So in the previous videos also I have tell you that turnaround time is what? Turnaround time means completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time is the turnaround time. So let's calculate. 3 minus 2 1 is the turnaround time. 16 minus 1 15 is the turnaround time for P2, and 5 minus 4 that is 1 is the turnaround time for P3. 11 minus 0 that is 11 is the turnaround time for P4. Now 7 minus 2 that is 5 is the turnaround time for
P5. Now let's understand how we can calculate the waiting time of each and every process. See, in the previous video also I have tell you what's the waiting time. Waiting time is basically turnaround time minus burst time. Turnaround time minus burst time. Okay. So basically क्या होता है कि प्रोसेस अराइवल से लेकर प्रोसेस कंप्लीशन तक का टाइम टर्न अराउंड टाइम होता है। एंड उस टर्न अराउंड टाइम में से अगर मैं वो टाइम माइनस कर दूं जब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी बर्स्ट टाइम माइनस कर दूं, तो तब तक वो प्रोसेस क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। सो दैट टाइम इज वेटिंग टाइम. टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज द वेटिंग टाइम. So let's calculate the waiting time for each and every process. For P1 the waiting time is what? So see कि P1 का turnaround time minus burst time. So 1 minus 1 that is 0 is the waiting time. 15 minus 5 that is 10 is the waiting time for P2. 1 minus 1 that is 0 is the waiting time for P3. 11 minus 6 is the waiting time for, there is 5 waiting time for P4. Now see, a lot of students do mistake in that in here also. They can do what? They can minus 11 with 4. They thought that now the burst time is 4. No, burst time is the original burst time you have to minus. Original burst time आपको minus करना है. You don't have to minus 4. You have to minus 6. Because 6 is the original burst time. Okay, so 11 minus 6 it is 5. Okay, now for P5, 5 minus 3, not 2. Okay, a lot of students do what? They subtract 5 with the 2. Okay, so you don't have to do that. Okay, so you have to minus 5 with 3, that is 2. Okay, so this is how you can calculate the waiting time of each and every process. Now see how you can calculate the response time. So response time is basically the time when a process get a response, मतलब कितने देर के बाद एक process को response मिला, is basically the response time. Okay, so for the response time you can see for P1 the response time is what? For P1 response time is you can calculate with the Gantt chart over here. See P1 कब आई, P1 को first response कब मिला? See P1 को first response मिला at 2. At 2 P1 got the first response. Okay, और P1 आई कब थी? P1 आई थी 2 पे, यानी 2 पे ही वो आई थी एंड 2 पे ही उसको रिस्पॉन्स मिल गया, यानी P1 ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, यानी कि उसको रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लगा ही नहीं, जिस टाइम वो आई उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स मिल गया. ओके, सो P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा? 0. नाउ फॉर P2, P2 को रिस्पॉन्स कब मिला? P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला था बेटा 11 पर. कब मिला था? 11 पर मिला था. ओके, और P2 आई कब थी? P2 आई थी 1 पे, यानी कि 11 माइनस 1 10, मतलब 10 तक उसने वेट करा, यानी 10 के बाद उसे रिस्पॉन्स मिला, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 10. ओके, नाउ फॉर P3, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 4 पे. ओके, और P3 आई कब थी? P3 आई भी 4 पे थी, यानी कि P3 को आई 4 पे थी और 4 पे आके उसको 4 पे ही रिस्पॉन्स मिल गया, यानी P3 डोंट हैव टू वेट. P3 ने वेट नहीं किया है, यानी P3 का रिस्पॉन्स टाइम भी 0 है. P3 को भी रिस्पॉन्स एकदम से मिल गया, 0 अमाउंट ऑफ टाइम उसने वेट करा. नाउ फॉर P4, सी P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स बेटा गैंट चार्ट में देखो 0 पे मिला है. ओके, कब मिला है? 0 पे मिला है. और P4 आई कब थी? P4 आई भी बेटा 0 पे थी. ओके, तो मतलब कि P4 ने बिल्कुल वेट नहीं किया, वो जैसे ही 0 पे आई और उसको 0 पे ही रिस्पॉन्स मिल गया, यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम 0. नाउ फॉर P5, P5 के लिए देखो कि P5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला? P5 को बेटा फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला था 3 पे. इन द गैंट चार्ट P5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला? 3 पे मिला. और P5 आई कब थी? P5 आई थी 2 पे. ओके, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी P5 ने प्रोसेस ने एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट किया है, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम बाद उसे रिस्पॉन्स मिला. 2 पे वो आई थी और 3 पे उसे रिस्पॉन्स मिला, यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद उसे रिस्पॉन्स मिला. सो इन दैट पर्टिकुलर वे यू कैन कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस. नाउ इफ यू रिमेंबर, आई हैव टेल यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट for non-preemptive scheduling mode,
waiting time and response time of processes are same. But in preemptive mode, the waiting time and response time of processes are different. You can see here, waiting time and response time of processes are different. Now, by different, I don't mean that it can't be same. कि same नहीं हो सकता. It means that they are not necessary to be same. कि waiting time और response time preemptive mode में जरूरी नहीं है same हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इन प्रीएम्प्टिव मोड सेम नहीं होता. ओके, ये आप याद रखो. ओके, so another thing is that if you want to calculate the average turnaround time, average waiting time and average response time, then you can calculate, you can perform the sum of all these time and then divided by the number of process, that is 5 here. Okay, similarly you can calculate the average waiting time by doing the addition of all of them and then divided by number of processes, that is 5 here also. And similarly you can calculate the average response time by doing the addition of all and then divided by 5. Okay, now see, let's calculate the average waiting time in SRTF. See, it is basically 17 over here, 17 the sum of all these, and the average waiting time that calculate out to be 3.4 here. Okay, 3.4. so average waiting time in SRTF in this particular problem क्या आया, 3.4 आया. See, आप इस प्रॉब्लम को किसी भी अनदर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम से इंप्लीमेंट करके देखो, चाहे आप FCFS से करना चाहते हो उससे करके देखो, SGF से करना चाहते हो उससे करके देखो, और आगे भी मैं आपको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम करवाऊंगी 2, उनसे करके देखना. एवरेज वेटिंग टाइम 3.4 से मिनिमल किसी भी एल्गोरिथम का नहीं निकल के आएगा. इससे क्या पता चल रहा है कि SRTF स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, यानी कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे मिनिमम है, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव एल्गोरिथम है. एवरेज वेटिंग टाइम इसका मिनिमम है. इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोसेसेस को अपनी बारी के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा. ओके, वेटिंग टाइम कम लग रहा है, प्रोसेस को कम वेट करना पड़ रहा है. ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस कम समय में ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी. ओके, सो ये वाली एल्गोरिथम SRTF एल्गोरिथम ऑप्टिमल एल्गोरिथम है अमंग ऑल ऑफ दी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम आपका CPU स्केड्यूलिंग का, उसे आप हर CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम से करके देखो, FCFS से करके देखो, SGF से करके देखो, और आगे भी जो मैं आपको कराऊंगी एल्गोरिथम उनसे इंप्लीमेंट करके देखना. यू कैन सी दैट किसी भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का एवरेज वेटिंग टाइम SRTF के एवरेज वेटिंग टाइम से कम नहीं आएगा. ओके, इस एल्गोरिथम को, इस वाले प्रॉब्लम को आप करके देखना. नो अनदर एल्गोरिथम विल हैव द एवरेज वेटिंग टाइम लेस देन 3.4. ओके, सो आपको एक और बात पता चली, SRTF का एडवांटेज, दैट SRTF इज द ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम. क्यों है ऑप्टिमल? बिकॉज इन SRTF the average waiting time is the minimum. Okay, so it is more productive one. Okay, now let's understand the advantage and disadvantage of SJF. SRTF का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया. अब SJF के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे ओवर FCFS, वो हम समझने जा रहे हैं. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो आई विल टेल यू दैट कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. सो हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी कवर कर लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एडवांटेज इज एवरेज वेटिंग टाइम इज लेस. In SJF, average waiting time is less. I'll show you with the proof that average waiting time of SJF is less. You can also check it by implementing the numerical, the problem by implementing it in FCFS first and then implementing in SJF. Okay, you can clearly see the differences. In SJF, the average waiting time is less. Okay, and because of it, throughput will be more. If average waiting time of processes are less, then at a particular moment of time more process will execute. जिससे more throughput होगा. Okay, and more throughput होगा तो degree of multi-programming will increases. Okay, so these three are basically the advantage of SJF over FCFS. Okay, now
व्हाट्स अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसजेएफ? सारी अच्छी बातें एसजेएफ के बारे में पढ़ ली, अब बुरी बात क्या है? बुरी बात एक ये हो गई कि यार एसजेएफ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बर्स्ट टाइम पता होना चाहिए, हमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को, बिकॉज ऑल टुगेदर ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट नो द बर्स्ट टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस इन एडवांस। उसे पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम इतना है, P2 का बर्स्ट टाइम इतना है। सो इन एडवांस उसे पता होना चाहिए कि कितनी देर के लिए इस प्रोसेस को CPU की जरूरत है इन एडवांस। ठीक है, अब देर में भी सर्टेन चांसेस व्हेन बर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस का एट मोमेंट जब वो आई है सिस्टम में, रेडी क्यू में आई है, उसको डिटरमाइन करना एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इजी ना हो। कि मतलब कि अभी एक प्रोसेस आई है रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के, और हम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम नहीं बता सकते कि उसका बर्स्ट टाइम कितना है, कि मतलब उसे कितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है there may be a lot of process there are that required CPU, मतलब कि उनको कितनी देर के लिए CPU चाहिए वो ऑन द एग्जीक्यूशन वही पता चलता है कि कितनी देर के लिए और उन्हें CPU चाहिए। पहले से नहीं पता होता कि इन्हें कितनी देर के लिए CPU चाहिए। देर आर मेनी प्रोसेसेस, ठीक है, सारी प्रोसेसेस ऐसी नहीं होती बट देर आर। तो उस केसेस में एसजेएफ तो फंक्शनिंग कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि एसजेएफ का फंक्शनिंग का ऑर्डर ही ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम। अगर उसको बर्स्ट टाइम ही नहीं पता होगा कि किसका शॉर्टेस्ट है तो आप क्या ही एसजीएफ लगाओगे। ठीक है, तो आपको कोई और स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम देखनी पड़ेगी। तो ये एक ड्रॉबैक और यू कैन से डिसएडवांटेज रह जाता है एसजेएफ का, वरना ऑल टुगेदर एसजेएफ इज द बेस्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। So this is for the today's video, guys. Okay, in that particular video we have covered the SJF with preemptive mode, that is SRTF scheduling algorithm. उसकी working हमने देखी, how to calculate completion time, turnaround time, waiting time, response time, हमने सब देखा. Okay, and advantage and disadvantage of SJF वो भी हमने cover करे. Okay, in the next video we're going to discuss about the priority scheduling. Okay, उसमें आप देखेंगे कि priority scheduling क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है. Okay, so if you guys like that particular video and particular series, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button.